Hello students, so we are going to solve this question. Again, this is all based on relative velocity. This was asked by one of my students. Okay, so this is very good question to clear your concepts. So let's just start. So consider two particles P and Q which are constrained to move along a smooth horizontal circular rigid wire. So it is smooth, कोई friction नहीं है. Horizontal circular rigid wire. Horizontal plane में motion हो रहा है of radius capital R as shown in figure. So figure is this. Okay, please forgive me for this figure और scanner आधा टेढ़ा कर दिया and आधा मेरी quality है. Okay, I was very bad at drawing also in BTech first year. Fine. So initially at t equal to 0, P and Q are located at diametrically opposite sides of circular wire. So t equal to 0, this is position at t equal to 0. So P and Q are where? They are diametrically opposite, diameter के opposite side में. So this is the diameter, right? So this is the diameter, इसके opposite में. Now, and moving with velocity 2v and v respectively. So particle P is moving with velocity 2v and particle Q is moving with velocity v. Alright. If after every collision their velocities are interchanged. देखो आप देख के लग रहा है दे विल कोलाइड राइट. यहाँ कहीं ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, एंड दे विल कोलाइड राइट. नाउ these are the options, four options, and multiple correct options are there. So this is advanced level question. So let's just choose. Okay, जब ऐसे कई सारे ऑप्शन रहा करे ना, देखो strategically second option is placed. This second option is at after first option in a way I'm trying to say. So pehla, you know this option is very easy, so try to do this first. उसके बाद पहले पे आते हैं. वैसे भी पहला कैलकुलेट नहीं कर पाओगे बिफोर यू कैलकुलेट सेकंड. तो देखा करो कौन सा ऑप्शन इजी है, तो यू ट्राई टू फाइंड दैट ऑप्शन. तो मार्किंग होती है ना, इफ यू चूज द करेक्ट ऑप्शन यू स्टिल गेट मार्क्स राइट इन जेईई एडवांस. So like that. Now tell me one thing, are these two particles moving in the same direction? No. So you might feel like कि हाँ ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, they are moving in the same direction. Technically if you are taking a vector form, yes, but यहाँ पे circular motion का कोई रोल नहीं है. ठीक है, you are not going to see okay circular motion है, centripetal centrifugal, forget everything. आपको इस जो वायर है ना इसको ऐसे ओपन कर दो, आप ये कर दो ऐसे. जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो ये वाला पोर्शन है इसको आप ऐसे ओपन कर लो. ठीक है, तब ये वाला पार्टिकल आपको दिखेगा इधर आता हुआ, पी पार्ट और क्यू पार्टिकल इधर आता हुआ दिखेगा. तो व्हाट विल यू सी, पी एंड क्यू आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर राइट. नाउ जब भी कोलिजन वाली बात हो और रिलेटिव वेलोसिटी आपको लगे कि लगाओगे, एक्चुअली कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी यू मस्ट अप्लाई द रिलेटिव वेलोसिटी राइट. सो व्हाट यू डू, क्यू को आप यहीं छोड़ दो. क्यू की वेलोसिटी, क्यू कितने से जा रहा, v से, और p कितने से जा रहा है, 2v से. मैं कह रहा हूँ q की वेलोसिटी रिवर्स करके p को दे दो और q रिवर्स कर दोगे, q की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो. इट विल हैव जीरो वेलोसिटी एंड p विल हैव हाउ व्हाट वेलोसिटी, 3v relative velocity. Now you both the particles has to collide, so p and q must collide. Now how long or how far p has to travel in order to collide, कितना distance travel करना पड़ेगा p को to collide with q. Half of the periphery, and how much is that half of the periphery, pi into capital R. R is given, capital R, pi R. So what would be the time taken in the first collision, distance upon speed, right? Pi into capital R upon speed. Speed is how much, relative velocity or relative, yeah, displacement upon velocity you can say. So pi R upon 3v, right? So second option is correct or not?
pi r upon 3. So second option is correct. Now let's see if first option is correct. Tell me one thing. If time taken to first collision, time taken for first collision is this, then how far does this p particle should travel and how far should q particle should travel, right? अब relative velocity के फ्रेम से बाहर आ जाओ। आपको पता है कि यहाँ कहीं कोलाइड होंगे, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो क्वार्टर से आगे आके इधर ट्रेवल करेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा। p को इधर सेम टाइम में p विल ट्रेवल मोर देन q, राइट? तो p कितना ट्रेवल करेगा यहाँ से मेजर कर सकते हो, टाइम पता है, वेलोसिटी पता है, राइट? आई एम सॉरी अबाउट दिस। टाइम पता है और वेलोसिटी पता है। टाइम कितना लग रहा है p को यहाँ से यहाँ आने में, पाई r बाई 3v। वेलोसिटी कितनी है इसकी, 2v, राइट? तो यहाँ से यहाँ का ये आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला पूरा हो जाएगा 2v इंटू पाई r अपॉन 3v, राइट? सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई r बाई 3, 2 पाई r अपॉन 3। टेल मी वन थिंग, Q कितना ट्रेवल करेगा सेम टाइम में, इतना, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, चाहे आप पाई आर में से 2 पाई आर बाई 3 घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड यू कैन गेट द आंसर, और यू कैन जस्ट अगेन डू द डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टाइम। सो v इंटू टाइम करोगे तो पाई आर बाई 3 आ जाएगा। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर कोलिजन, p विल गो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, बट विद व्हाट वेलोसिटी, वेलोसिटी v, क्योंकि इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जा रही है। एंड आफ्टर कोलिजन q विल गो इन दिस डायरेक्शन with what velocity, 2v, right? Let me raise this thing, 2v। so collision के बाद q इधर आएगा, p उधर आएगा। यहाँ पे मैंने एक बहुत ब्लंडर किया था, so do not ever think that p will go in this direction and q will go in this direction. No, question has not clearly mentioned कि दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर दे आफ्टर कोलिजन दे रिट्रेस देयर पाथ। क्वेश्चन शुड हैव मेंशन दे रिट्रेस देयर पाथ, बट यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना है, विच आई कुड नॉट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। लेटर ऑन आई थॉट, आई डिस्कस्ड विद अ फ्रेंड, वेरी स्मार्ट फ्रेंड, सो ही मेड मी रियलाइज कि कोलिजन के बाद व्हाई आर यू टेकिंग p पार्टिकल टू दिस डायरेक्शन एंड q पार्टिकल टू दैट डायरेक्शन। मैंने क्या किया था, q को इधर लेके गया था और p को इधर लेके आया था। यू डोंट हैव टू डू दैट, p will retrace its path and q will retrace its path, right? So that's why what will happen, that's the common sense that you should think now। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं फिर से। let me see if I can make a circle। अब कोलिजन यहाँ पे कहीं हुआ है, ये हाफ ऑफ द सर्कल मान लो, कोलिजन यहाँ कहीं हुआ है, ठीक है। अब इधर कौन जा रहा है, q, बट किस वेलोसिटी से जा रहा है, 2v से, और p इधर जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, v से, ठीक है। टेल मी वन थिंग, अब ऑप्शन पे आ जाते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन, मिनिमम टाइम आफ्टर विच पार्टिकल्स विल बी डायमेट्रिकली अपोजिट। तो यहाँ से कोलिजन ये ट्रेवल करेंगे, फिर डायमेट्रिकली अपोजिट कितने टाइम के बाद होंगे। टेल मी वन थिंग, फिर से ये एक दूसरे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वायर अगर खोल दोगे ना, फिर से ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अभी भी रिलेटिव वेलोसिटी 3v ही है, स्टिल रिलेटिव वेलोसिटी इज 3v, राइट। नाउ डायमेट्रिकली अपोजिट होने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, अगर एक को रेस्ट पे कर दो यहीं पे तो p यहाँ पे है, राइट, यहाँ पे p है या q, दोनों यहीं कोलिजन के बाद थे, जस्ट आफ्टर द कोलिजन, तो क्या होगा, q को यहीं सॉरी p को यहीं छोड़ दो, p की वेलोसिटी रिवर्स करके 2 q को दे दो, q की वेलोसिटी कितनी हो गई, 3v। टेल मी वन थिंग, डायमेट्रिकली अपोजिट p यहीं पे है, q
will reach somewhere here, right, to become diametrically opposite. यहाँ Q पहुंचेगा, right? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इसे? पाई आर, राइट? पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा. ओके, सो टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में? टेल मी. पाई आर अपॉन 3b, right? Now tell me one thing. Question is asking कि how long will it take to become the particles diametrically opposite again. कब से टाइम पूछा है? t इक्वल टू 0 से पूछा है. After t equal to 0, how long will it take for the particle to be at the diametrically opposite location? तो अभी तक कितना टाइम लगा था यहाँ से यहाँ आने में? पाई आर बाई 3b, and again after pi r by 3b they are going to be at diametrically opposite location, right? So total time would be how much? 2 pi r upon 3b. So first option is correct or not? Right, first option is correct. First is also correct. 2 pi r upon 3b. So pi r upon 3b already spent था और आगे pi r by 3b चलेंगे तो they will be diametrically opposite, right? Now थर्ड ऑप्शन के लिए, ठीक है, सेकेंड कोलिजन विल टेक प्लेस एट इनिशियल पोजीशन ऑफ पी और क्यू. थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है. तो पी हमारा कहाँ है? इनिशियल पोजीशन ऑफ पी इज दिस, राइट? नाउ टेल मी वन थिंग. सेकेंड कोलिजन कब व्हेन विल इट टेक प्लेस? सेकेंड कोलिजन बताओ. देखो पहला कोलिजन हुआ, ठीक है, क्यू. फॉर सेकेंड कोलिजन टू हैपन Q will travel all the way through here, right? रिलेटिव वेलोसिटी के फ्रेम में आते हैं, यहाँ पे आओ, ठीक है. सेकंड कोलिजन के लिए Q को पूरा कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, बट विथ व्हाट वेलोसिटी? 3v, राइट? तो ये हो गया टाइम. आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग फॉर टाइम टेकन फॉर द सेकंड कोलिजन. So time taken for second collision is going to be 2 pi r by 3b. So इसका explanation अलग है, इसका explanation अलग है, so don't get confused. So 2 pi r by 3b. Now tell me one thing. How long, not how long, how far Q should travel in order to collide again? So Q कितनी देर तक चलेगा? How long will it take travel? 2 pi r by 3b. तो distance कितना हो जाएगा? ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 पाई आर बाई 3b, 2 पाई आर बाई 3b into what? Time into velocity, and velocity of q is how much now? Tell me. 2b, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 into b. कितना आया? v भी कैंसिल्ड आउट हो गया, ठीक है, आया. डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा q को दोबारा कोलाइड होने के लिए? 4 पाई आर बाई 3, 4 पाई आर बाई 3. कितना ट्रेवल करेगा q तब कोलाइड होगा? अब टेल मी वन थिंग. q है कहाँ आफ्टर फर्स्ट कोलिजन? जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन q इज एट दिस लोकेशन. यहाँ से ये वाला आर कितना है? पाई आर बाई 3, और ये पूरा कितना है? हाफ ऑफ द पेरीफेरी, दैट इज हाउ मच? पाई आर. सो पाई आर प्लस पाई आर बाई 3, टोटल कितना हो गया? 4 पाई आर बाई 3. तो Q को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 4 पाई आर बाई 3, और वो लोकेशन कौन सी है? P की इनिशियल लोकेशन. तो सेकंड कोलिजन होगा कहाँ पे? P के इनिशियल लोकेशन पे, राइट? P के इनिशियल लोकेशन पे सेकंड कोलिजन होगा. ये समझ में आया ना? पाई आर यहाँ से यहाँ तक है, ये पाई आर बाई 3, टोटल कितना हो गया? 4 पाई आर बाई 3, और Q को 4 पाई आर बाई 3 ही ट्रेवल करना था in order to collide again, ठीक है. You can watch the video twice in order to understand completely. Step by step करो, और have a pen and paper always to do advanced question whenever I'm solving. You have to do it with me, okay?
then only you can understand, right? So this is good question. So a good question teaches you multiple concepts. You must remember that. Okay. So it's not just you are doing this question and you are done with it. No, you are being taught multiple concepts from a good question, relevant question, and JEE advanced level question. So this was one of them. Thank you so much for watching the video, and do subscribe to my channel and clear your doubt, and also do share the videos. Talk to your friends about this. This is a great opportunity to clear your doubts. Doubts cannot be only in question form. And do send me relevant questions, which can be asked in JEE advanced level, right? If you are serious candidate, or if you are mains candidate, as well as other students as well, NEET, for example. So all the best. Thank you so much.